ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. پتہ کیسا پسینہ تھا؟ اے ہائے ہائے ہیں سبحان اللہ. نبی پاک ایسے مہکتے تھے. آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں, جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے, نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں, بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں, ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا, بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا, پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی, پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا, پھر بائیں الٹو ہاتھ مڑنا, پتہ گھومتا ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا, نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں, وہ گلی کے کنارے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے, وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. میرے آقا کا ایسا پسینہ, یوں گلیاں مہکا کرتی ہیں. ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے, سچی بات ہے. آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو, بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے, عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے. 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا, سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, چکھنے کی صلاحیت. جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عشق رسول والی ناک ہو, بھیج دو اسے مدینے, تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا ہے. شاعر کیا کہتے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. آج بھی گلیاں مدینے کی بہک رہی ہے, وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی. ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے, عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں, آپ بھی اگر مکے مدینے گئے ہوں گے, اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے, وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں, وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا, شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا, فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. وہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو, دلہن کو دے دو, کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے, کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے, اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے, ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا, اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں, وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں؟ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. ایسے ہے میرے آقا, اتنے حسین آقا ہے, ایسے باکمال آقا ہے. ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو, وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے, اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا, سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں, امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں, ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں. یہ ایک شعر آج سمجھ لینا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے. امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے. وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان, عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں. یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا, آپ کو بات سمجھ آ گئی. مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں. یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے, علماء موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا, آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ, تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن. کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا. میرے ساتھ رہیے گا, آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی شعر کو. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف. کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی. کٹی یا کٹ گئیں؟ کٹ گئیں نا, بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹی. اوکے. پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھیں؟ عورتوں کی انگلیاں تھیں. چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی. ذرا سمجھیے گا, عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئیں, بے ساختہ کٹی ہیں. اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں. کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہے. 6 باتیں یاد رکھیے گا.
आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है, देखा नहीं है हुजूर, आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर क्या वहां कट गई हैं, यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, हैं होशो हवाश में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं हुजूर, इधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे रजा ने कमाल कर दिया और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीब नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखें तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूं, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊं आपको। वजह यह है कि जब आप झूले में थे ना बचपन में, तो मैंने नोट किया कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ जाता था। हजरत अब्बास आपके चचा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी लतीफ सी बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। बाज़ औक़ात बुजुर्ग हमें भी शर्मिंदा कर देते हैं। जब हमारे खानदान के बुजुर्ग आते हैं ना घर में, कहते हैं बेटा बचपन में तुम ये करते थे, वो कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं, ताया हुजूर की बात माननी पड़ती है। ठीक है आप कह रहे हैं तो किया होगा, माफ करते हैं भाई, बताएं तो ना सबको, बचपन में तो बहुत कुछ किया था, लेकिन याद नहीं होता। नबी के पाक से हजरत अब्बास कब की बात कर रहे हैं, सरकार झूले में। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि ए चाचा मुझे क्या पता मैं झूले में क्या करता था। आका फरमाते जी चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। चांद मुझे रोते वक्त चुप कराया करता था। ऐ मेरे चाचा जान, मैं अपने चांद की आवाज सुनता था जब वो रब की बारगाह में सजदा किया करता था। अरे बचपने में जिस नबी का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ऐसा हसीन, ऐसा बाकमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, अगर वाकई किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं। आंखें कैसी हैं पूछो आला हजरत से, कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान मुबारक कैसे हैं दूर नजदीक के, सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुबारक होंठ कैसे हैं, कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे जबान मुबारक कैसी है, कहते हैं वो जबान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराए तो रोतों को हंसा दें, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस किस वस्फ की और जिसमें अथर की किस किस बात की बात की जाए, सारी दुनिया के खजाने रब ने अता फरमाए, मगर सादगी का आलम क्या है। फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे आका हैं तो फिर किसी और से प्यार कैसे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। अब चलते हैं कि दूसरा रीजन कि जनाब हसीन ना भी हो तो कोई बाकमाल होना उससे प्यार हो जाता है। स्पेशल एबिलिटीज हो, कमाल के उसके मामलात हो, तो बंदा उसका दीवाना हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। अगर वाकई बाकमाल से प्यार करना है, नौजवानों सुनो, तो कमाल के दर्जे पर पहुंचता जब है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह ने कैसा बाकमाल बनाया। ठीक है, दुनिया में बहुत बाकमाल लोग आए होंगे, कोई ऐसा है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, कोई ऐसा है जो दुआ करे तो चांद वापस जुड़ जाए। आज तक हम अपनी टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, इफ्तार की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं कि जनाब आज इतने बज के इतने मिनट पर सूरज गुरूब हो जाएगा, इतने बजे ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा। सदियों से सूरज अपनी रफ्तार और अपनी डायमेंशंस में चल रहा है, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मौला अली की नमाज जा रही थी, मेरे आका ने दुआ फरमाई तो सूरज वापस पलट आता है। अरे मगरिब के बाद तो नॉर्मली ईशा का वक्त होता है, मगर मकाब सहबा पे ये कुदरत का नजारा लोगों ने देखा कि मगरिब का वक्त होने के बाद फिर असर का वक्त होता है। अरे ऐसा कमाल दुनिया में किसके पास है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया। क्या खूबसूरत पंजाबी नात का शेर है ना कि करके दुआ सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा आपे चन जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, हाँ बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा
इशारा, कसम खुदा दी है सब नादो प्यारा। कमाल से प्यार करना है ना। सुनो, हुदैबिया का मौका है, 1400 सहाबा हैं, सब प्यासे हैं। आका के पास आकर कहते हुजूर पानी नहीं है। अच्छा ये भी कमाल देखो, सहाबा को जो चाहिए होता प्यारे आका के पास आते थे। भाई अल्लाह से मांग लो ना। सहाबा इकराम का ईमान कैसा था, अकीदा कैसा था कि जो कुछ चाहिए जब नबी पाक जलवा फरमा है तो इन्हीं के जरिए रब से अर्ज करेंगे। वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। साहबा ने कहा हुजूर प्यासे हम भी हैं, जानवर भी प्यासे हैं, वुजू भी करना है, बर्तन भी खाली हैं। आका ने फरमाया अपने बर्तन से पानी जमा करो। साहबा कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं हुआ। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, जरा सोचिए कि ये तो हमने हज़रत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने ज़मीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली ज़मीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था, नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते हैं 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सब ने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, कहा थे तो 1400 लेकिन जोश ऐसा था कि 1 लाख होते सबको पूरा हो जाना था। है कोई ऐसा बाकमाल? अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो तलब रज़ा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं तो नबी पाक से ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। इस दुनिया में अथॉरिटीज के साथ साथ रब ने आसमानों पर इख्तियार अता फरमाया, रब ने इस पूरी कायनात पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, आका फरमाते बेशक मुझे रब अता फरमाता है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो ये बात आज अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर लो, कभी कंफ्यूज ना होना। वो जो पंजाबी में हम शेर कहते हैं ना, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, अरे यही तो हदीस मेरे आका फरमा रहे हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। बरेली के ताजदार यही तो लिखते हैं कि रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिला दे ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन से कमाल की बात करूं, मदीने के लोग आते थे, दूर दराज के गांव से लोग आते, कहते हुजूर हमारे इलाके क्या जो है वो पानी कुआं खोदा कड़वा पानी निकला है। अब कड़वा पानी निकला, इसमें नबी पाक के पास क्यों आए हो भाई? वो जानते थे इनकी निगाह करम से बहुत कुछ हो जाता है। आका तशरीफ ले जाते, उस कुएं में कुल्ली फरमाते, वो पानी मीठा हो जाया करता था। कैसा लुआबे दहन है, हैं? हसीनों से प्यार करने वालों, किसी के थूक में कमाल देखा है? थूक से घिन आती है। अल्लाह ने ऐसा लुआबे दहन अता फरमाया। हजरत एक बड़े प्यारे साहबी हैं उतबा, वो कहते उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहते मैं उनकी 4 बीवियां थी, वो चारों बीवियां एक बात आपस में करती थी कि हज़रत उक्तबा पता नहीं कौन सी खुशबू लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, वाइफ अपने शौहर के लिए तैयार होती, मगर देखती हज़रत उक्तबा उनसे भी ज़्यादा महकते थे। एक दिन चारों ने मिलकर पूछा हुजूर हमने कभी आपको खुशबू लगाते देखा नहीं, छुप के लगता है आप लगाते हैं, कौन सी खुशबू लगाते हैं? हज़रत उक्तबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। और आप खुशबू नहीं लगाते, इतने महकते कैसे हैं? कहले हुआ ये कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज़ हो गई, मैं नबी पाक की बारगाह में गया। आए हाय, साहबी का अकीदा देख रहे हो, बॉडी पे प्रॉब्लम तब भी नबी पाक के पास जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा मेरे पास क्यों आए हो, जाओ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। आका फरमाते अपना कुर्ता उतारो। हज़रत उतबा कहते हैं मैंने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। कहते उस दिन से बीमारी दूर हो गई, जिस्म ऑटोमेटिकली महकने लग गया है। ऐसे बाकमाल आका हैं, अल्लाह अकबर। एक बार एक साहबी कहते मैं तलवार से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते गजवे में मेरी तलवार टूट गई। आका के पास आया, कहता हुजूर तलवार टूट गई है। नबी पाक ने लकड़ी पकड़ा दी, कहते लकड़ी पकड़ कर चला गया मैदान में, वो लकड़ी ही तलवार बन गई। हाय हाय हाय, कैसे बाकमाल आका। एक बार क्या हुआ, 2 साहबा कहते हैं रात हो गई, नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, अब वापसी का वक्त आया। मिसाल देता हूँ आपको, अभी तो हम बाहर जाएंगे, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास गाड़ी, सब में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ब्लैकआउट हो जाए, स्कूटर की गाड़ी की लाइट भी ना हो, तो कैसे रास्ता मिलेगा? उस जमाने में गाँव में सोचे कोई लाइट नहीं है और वापस जाना है, रोशनी नहीं है। नबी पाक से अर्ज़ करते हैं हुजूर वापस जाना है, रोशनी नहीं है। प्यारे आका ने एक लकड़ी दी और उसको हाथ टच कर दिया, कहते हैं बाहर निकले तो वो लकड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो गई। अच्छा, दोनों सहाबी जो है उस रोशनी के सहारे चलने लगे, चलते 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 अपने घर के पास पहुंचे तो अब टी जंक्शन आ गया। टी जंक्शन से मुराद क्या होता है? आगे रोड बंद, एक सहाबी का घर दाईं तरफ, एक का बाईं तरफ। अब दोनों सोच रहे हैं लकड़ी लेके कौन जाए, रोशनी तो एक के साथ चली जाएगी, दूसरा अंधेरे में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। रिवायत के अल्फाज हैं, दूसरे सहाबी ने ज़मीन से लकड़ी उठाई, उस लकड़ी से टच की, वो दूसरी लकड़ी भी रोशन हो गई। है नबी पाक के नूर की बात तो बाद में करना, आका जिसे टच कर दे वो नूरानी हो जाता है। ये शान है मेरे आका की। अगर बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो इनसे बड़ा बाकमाल कोई नहीं। एक बार नबी पाक ने हज़रत जिब्रील अमीन से बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन कमाल की शख्सियत है, फरिश्तों के आका तो हैं मगर वो हर नबी के सहाबी हैं। हाँ, हर नबी के सहाबी, हर नबी को देखा उन्होंने।
تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا، فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے، ایک جہان دیکھا، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، سوال دیکھو، اس کا جواب سنیے گا. ہیں جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے، آقا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یک بنایا مجھے، یک بنایا مجھے، یک بنایا مجھے، محمد نے